तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. Now we are at chapter 3, Karma Yoga, verse 3.01. Arjun Vach Jyayasi chet कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव. Arjun said that jyayasi chet karmanah te mata buddhir janardana jyayasi superior cha karmana jyayasi cha karmana te, if by fruitive works, fruitive actions, if buddhi is superior, if intellect is superior, that if buddhi yoga is superior, then the fruitful actions of karma, fruitful actions of work, tat kim karmanim ghore, then why are you indulging me? Tat kim, why you? Karmanim ghore, why you are indulging me in this terrible work? That is, why are you indulging me in this terrible work? O Keshav, O the killer of Keshi demon, O Keshav. The word is used for Lord Krishna. So Arjuna is asking that you have said, O Lord Krishna, you have said that intelligence is, buddhi yoga is superior than that fruitful actions. So why are you insisting me to get indulged in this war, which is a kind of terrible war, which may give me sin? So why are you indulging me? The literal meaning is that, O Janardana, if it be your opinion that wisdom is superior to action, why then do you urge me to do horrible action? Let us avoid this war and do buddhi yoga. That means by intelligence we should get samatva, we should get the equanimous mind. So this is the question put up by, when any chapter starts, then Arjuna puts up some questions and then new kind of yoga is explained by Lord Krishna. Here Lord Krishna is explaining in the third chapter as buddhi yoga. Now chapter 1 introduces the setting of which the Arjun's grief and lamentation, that is the Arjun Vishad Yoga. So in that chapter Shri Krishna has given spiritual instruction. In chapter 2, first Lord Krishna has explained about Sankhya Yoga. What does it mean by Sankhya Yoga? That means by wisdom. When we renounce work, we are not doing work. That means the work, external work, getting anything from this material world, though all the works going in our body continues, but we renounce external work, and by our wisdom we try to discriminate between soul, body, what is soul, what is body, what is Atman. So this is Sankhya Yoga. That is what is the nature of Atman. So it is Sankhya Yoga. After that, at the later part of the second chapter, Shri Krishna has switched over to buddhi yoga, that is by intellect. When you are equanimous in both the happiness and sorrow, in that condition you achieve buddhi yoga. तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कृष्ण पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग, जिसमें कि अर्जुन विषाद में था
कि अपने संबंधियों को हम कैसे मार सकते हैं, इससे तो महान पाप लगेगा, और इस विषाद के कारण वो भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गया। सो कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेया शा निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता पूर्ण दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला मैं आपकी शरण आता हूँ, जो मेरे लिए श्रेयकर हो वो मुझे आदेश करें, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तो यहाँ अर्जुन विषाद योग, द फर्स्ट चैप्टर इज द अर्जुन विषाद योग। इन सेकेंड चैप्टर दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रथम तो सांख्य योग की बात कही। सांख्य योग का अर्थ है कि अपने विवेक के माध्यम से जो कुछ भासता हो, जो दिखाई देता हो, इस बात की पहचान करें कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। इन सब बातों के बारे में हम जाने, परा क्या है, अपरा क्या है। तो वहाँ पर आत्मा के स्वरूप के बारे में भगवान ने बताया कि आत्मा न जलाई जा सकती है, न भिगाई जा सकती है, न मारी जा सकती है, न काटी जा सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि आत्मा का क्या स्वरूप है। तो सांख्य योगी विवेक के माध्यम से आत्मा के बारे में सोचते हैं। फिर भगवान दूसरे अध्याय के अंत में बुद्धि योग पर आ जाते हैं। तो बुद्धि योग में ये बताया गया कि हम अपने बुद्धि के माध्यम से, विवेक से थोड़ा ऊपर बुद्धि है, तो दैट इज इंटेलेक्ट एंड हियर इट इज विजडम। सो इंटेलेक्ट इज मोर पावरफुल, मोर स्टैटिक एंड विजुअलाइजेज एनीथिंग विद ग्रेटर इंटेंसिटी। सो बुद्धि के माध्यम से जब हम समत्वता को प्राप्त कर लेते हैं तो वो बुद्धि योग है। और उसी में स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी बताए गए कि कैसे एक स्थित प्रज्ञ जो होता है वो समत्व की ओर प्राप्त होता है। तो यहाँ अर्जुन को अब फिर से इस बात पर एक संशय हुआ कि कभी तो आप ये बोलते हैं कि कर्मों का त्याग कर लो, और आत्मा परमात्मा की बात करते हैं कि आत्मा का क्या स्वरूप है, तो कर्म किस लिए करना अगर आत्मा अमर है, न जलाई जा सकती है, न मारी जा सकती है। और कभी कभी तो आप बुद्धि योग की बात करते हैं कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। तो हमें जब कर्म करना चाहिए तो भगवान के समर्पित करके करना चाहिए। तो कई श्लोक उसके बारे में, बुद्धि योग के बारे में अध्याय दूसरे के अंत में दिए गए हैं। तो भगवान कृष्ण से वो कहते हैं कि यदि ऐसी बात है, इफ दिस इज द फैक्ट, then why are you indulging me in this heinous work of war? May I, from my intellect, try to achieve the Lord? Why should I indulge in this war? For that, Shri Krishna, in this third chapter, states that लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सो लोके अस्मिन्, in this world there are two types of dvividha nishtha, two types of faiths are there, that is Gyan Yogen Sankhyanam. For Gyan Yogi it is Sankhya Yoga, and Karma Yogen Yoginam, that is for Karma Yogi it is Buddhi Yoga or Karma Yoga. Buddhi Yoga and Karma Yoga are same. So Lord Krishna is stating, भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग विवेक के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि हम आत्मा में और शरीर में अंतर स्थापित कर लें। वे कर्म नहीं करते, लेकिन विवेक के माध्यम से बाहरी कर्मों का परित्याग कर देते हैं। दे रिनाउंस द एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एक्शंस। हाउएवर, और विवेक के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आत्मा क्या है। वहीं दूसरी तरफ ये तो बाहरी कर्मों का परित्याग कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान को समर्पण करते हैं, दैट इज़ बुद्धि योग। अपने बुद्धि के द्वारा बुद्धि योग समर्पण तो करते हैं, लेकिन जो कर्म फल का त्याग नहीं करते। तो उनके बारे में यहाँ कहा गया है न कर्मणाम अनारंभा, चौथे श्लोक में इसी अध्याय के 3.04 वर्ष।
तो लॉर्ड कृष्णा सेज न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते. इफ सम पर्सन renounces the work, external work, then that person is not reaching the freedom of karmic reaction. यदि हम कर्मों का त्याग कर दें सांख्य योगी की तरह, जो सिर्फ आत्मा के बारे में और ये ढूंढता रहता है और सभी कर्मों का त्याग कर देता है, तो उससे भी हम नैष्कर्म को यानी कर्मों के बंधन से स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकते. तो कुछ लोग उस समय वैसे भी थे जो कर्मों का त्याग करके पहाड़ों पर चले गए थे और सोचते थे कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे. भगवान दोनों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि गीता लिखी गई है तो उनके बारे में भी कही गई है जो पहाड़ों पर चले गए थे और कर्मों का त्याग कर दिया था. न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते. वे सांख्य योगी जो कर्मों का मात्र त्याग कर देते हैं, तब भी उनके मन पुनरावृत्ति करता है. द माइंड रिपीट्स द सेम काइंड ऑफ एक्शंस अगेन एंड अगेन. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द माइंड. सो दो वी रिनाउंस द वर्क, बट द अटैचमेंट फॉर वर्क एंड द गेन्स that is behind the work which we can grab by working, it is always in our mind. So mind keep on working, so we cannot get rid of the attachment of karmic reactions. तो कर्म के त्याग देने मात्र से हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते. भगवान ने कहा इसलिए सांख्य योग अगर स्वतंत्र रूप से किया जाए तो वो व्यर्थ है. जब तक हम कर्म को न जाने कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, उसकी गति क्या है, तब तक इस प्रकार से त्याग देने से हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते. न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति. एंड न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति. सिद्धिम समधिगच्छति दैट मीन्स बुद्धि योग. हम बुद्धि योग को भी नहीं प्राप्त कर सकते संन्यासनात् एव, दैट इज संन्यास से. संन्यास मीन्स अच्छे और बुरे कर्मों के त्याग से भी हम सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते. तो बुद्धि योग अगर आपको प्राप्त करना है, सो हियर लॉर्ड कृष्णा सेज दैट अ ट्रू कर्म योगी मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट एन अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन. सो हु इज ट्रू कर्म योगी, हु इज ट्रू बुद्धि योगी? समत्वम योग उच्यते. That means he has to see that this requires cultivation of knowledge in intellect. So the philosophic knowledge is also necessary for success in कर्म योग. इसका मतलब है कि बुद्धि योग में भी दर्शन की आवश्यकता है. हम दर्शन मीन्स फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र. हमें ये जानना होगा कि कर्म को किस प्रकार से बंधन से मुक्त होकर करें. ना हमें सुख की ओर झुकना है ना दुख की ओर, तो वहाँ दर्शन की आवश्यकता है. और सांख्य योग में बुद्धि की आवश्यकता है. सो ये दोनों एक साथ सभी में रहते हैं. कुछ लोग सांख्य योग उनमें अधिक होता है, विवेक की अधिकता होती है, और किसी किसी में भक्ति की अधिकता होती है, जो भगवान की भक्ति के सहारे इसे प्राप्त करना चाहते हैं. लेकिन वे दर्शन बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहते. सोचते हैं कि बस भगवान के समर्पित हो जाएं और फिर जो आता है उसमें दुख में दुखी होते रहते हैं, सुख में सुखी होते रहते हैं. उन्हें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए. भगवान ने ये बुद्धि हमें किस लिए दी है कि हम इसका भी प्रणिपात करें. वी शुड surrender our intellect in the feet of God and keep on seeing that what are the impacts of material world on us, and let them also we have to analyze the things and उसको धीरे धीरे त्यागना चाहिए. तो यहाँ पर बात कही गई है कि जिसमें विवेक की अधिकता होती है और वो बाहरी कर्मों का त्याग कर देते हैं, वे सांख्य योगी कहलाते हैं. जिनमें भक्ति की अधिकता होती है वो बुद्धि योगी कहलाते हैं या कर्म योगी कहलाते हैं. लेकिन दोनों में साथ साथ रहता था, और उस समय के युग में दोनों ही तरह के लोग थे. तो श्री भगवान ने दोनों प्रकार के योगों के बारे में अध्याय 2 में बताया, और अब यहाँ बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से संतुलन स्थापित करना चाहिए. कर्म तो हमें अवश्य करना है. वी हैव टू डू वर्क. हाउएवर हाउ टू डू वर्क so that we can attain this buddhi yoga, we can attain the karma yoga.
the skill of doing work is karma yoga. That how should be our outlook about the work, it is karma yoga. So this chapter elaborates things and also establish a very good balance that how we should work so that we attain buddhi yoga. So this is elaborated. Now let us switch over to first verse that says ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव. O Lord Krishna, ज्यायसि, if in your opinion, ज्यायसि, that means superior, if in your opinion wisdom is superior to action, that is ज्यायसि कर्मणिम ज्यायसि चेत कर्मणस्ते, ज्यायसि च इत कर्मणः ते मता बुद्धिर जनार्दना, if that intellect is superior to work, buddhi, so कर्मणः ते मता बुद्धि. So if intellect is superior to action, then why do you urge me to horrible action, O Keshava? Now Lord Krishna first explained that knowledge of immortal self. So Lord Krishna in the second chapter initially has said that we are immortal, our soul is immortal. He then reminded Arjuna of his duty as a warrior. After that, first Lord Krishna says that soul is immortal, आत्मा अमर है. फिर वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम एक योद्धा भी हो, and said that performing it would result in glory and the celestial abode. So यदि तुम इसे करोगे तो तुमको यश प्राप्त होगा. After prodding Arjuna to do his occupational work as a Kshatriya, Shri Krishna then revealed a superior principle, that science of Karma Yoga, and Arjuna to detach himself from the fruits of work. Though he says that you are Kshatriya, you should indulge in this religious war, then also you should not get attached to this work. तुमको इस कर्म को, इस युद्ध को न जीत की आशा से करना है, न हार की आशा से करना है. सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो ततो युध्याय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि. In chapter 2, Lord Krishna is saying some dukhe sukhe kritva. So you should be equanimous in sukh dukh, labh alabh, jay ajay, tato yudhya yujyasva. If in this way you are indulging in war, naivam papam avapsasi. Now, to detach himself from the fruits of war in this way, bondage created karma will be transformed into bondage breaking karma. So if we do karma, we have not to renounce the work. We should not try to become Sankhya Yogi. They are taking the literal meaning to, if you want to leave the fruits, then you have to leave the karma. Some are taking in this manner. यदि तुम्हें कर्मों के फल का त्याग करना है तो कर्म का त्याग करना पड़ेगा. ऐसा कुछ योगी लेते थे, तो वे कर्म को त्याग करके पहाड़ों पर चले जाते थे. लेकिन जो मन है उसकी गति कर्म से प्राप्त होने वाली आसक्तियों में, कर्म के प्रति भी रह जाती है कि ये कर्म हमें करना चाहिए था, वो बहुत अच्छा कर्म था, या उससे जो प्राप्त फल हैं. तो मन गति करता रहता है, और जब तक मन का कर्म चलता रहता है तब तक हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते. तो इसलिए सांख्य योगी जो बड़े बड़े विश्वामित्र थे, उनको भी उर्वशी और रंभा अपने में आकर्षित कर लेती थी, क्योंकि हम कर्म की आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकते. सो यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्णा रिवील्ड ए सुपीरियर प्रिंसिपल, दैट इज साइंस ऑफ कर्म योगा, एंड आस्क्ड अर्जुन टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ इट्स वर्क. उन्होंने कहा कर्म तो करो, लेकिन इसके फल से तुम मुक्त होकर कर्म करो, और इसके फल को तुम मेरे में समर्पित कर दो. बोले अर्जुन से श्री भगवान, सुनो गीता का ज्ञान, सुनो गीता का ज्ञान.
सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, पाने में ना हर्षित ना खोने का गम है, योगी द्वंद्वों में रहता समान, यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान. सो यू हैव टू submit both kind of fruits, all kinds of fruits of your actions, because you are doing work by the energy of God. So in this manner we have to do work. He termed the science of working without desire for reward as buddhi yoga. Then it rewards us buddhi yoga. When we do karma for God, though we are doing karma, but we are कंसिडरिंग कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं. भगवान हर घटना माँ का मंगलमय विधान है. एंड वॉट एवर गॉड इज ग्रेसिंग टू अस, वॉट एवर गॉड इज पोरिंग टू अस, एंड वॉट एवर इज बेस्टोड टू अस बाय गॉड, वी आर accepting it cheerfully. So if we are doing work like this, we are not taking is granted that I have done this work, so I should get this. This is not the manner. We are doing work for our progress, for our renunciation. So we are doing work for God. हम कर्म को अपने लिए उद्धार का माध्यम मानते हैं, अपनी प्रगति का माध्यम मानते हैं, और इसलिए हम कर्म भगवान के लिए करते हैं. क्योंकि कर्म भगवान के लिए करना, जैसे बच्चा विद्यार्थी शिक्षक को प्रसन्न करने के लिए ही प्रश्नों का उत्तर दे, वो ये ना सोचे कि हम ये पा जाएंगे वो पा जाएंगे, तो शिक्षक उसकी ओर ध्यान देगा. हम अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म करते हैं फिर उन्हीं पर छोड़ दें. वो कितने अंक देता है उसमें हम किसी तरह की जिरा न करें. जो भी हमको रिवार्ड मिलता है, जो पुरस्कार मिलता है, हम उसको सर माथे लगाएं और अच्छा करें. इस तरीके से हमारी प्रगति होती जाएगी. सो इन दिस मैनर व्हेन वी डू गॉड, एंड दैट इज द मास्टर ऑफ एवोल्यूशन, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, एंड देयर इज जीरो एरर इन द training of that God. So we are under his supervision. So we have to submit ourselves as much as possible. We have to submit our all work at the feet of God. Surrender all the work. We have to do work for the God. Now, so verse number 3.02. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयान्. व्यामिश्रणेव वाक्येन, व्यामिश्रेण इव वाक्येन. So vimishrain, that is your ambiguous, apparently ambiguous words. Buddhim mohayasiv me, my mind is getting bewildered. I am now getting confused. At certain times you are saying that renounce the work because soul is immortal. At other times you are saying go and indulge into art, but some dukhe sukhe katva. Don't get biased towards either happiness or sorrowness. Don't go for win or loss. So at other times you are saying me to go in and indulge into art. So I am getting confused by your ambiguous word. Your words are आपके मिले जुले वाक्यों से. So आपके इन वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है. व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयान्. तद एकम वद निश्चित. सो प्लीज स्टेट मी, टेल मी व्हाट इज डिसीजिव. सो एक बात करें जो निश्चित हो. श्रेयोऽहमाप्नुयान्. सो व्हाट एवर इज गुड फॉर मी. श्रेयो अहम
apnuyan, so that I may attain the success, I may attain ultimately the greaterhood. So please tell me that thing, because your words are ambiguous. So Shri Krishna was literally explaining for all kinds of persons at that time who are doing some Sankhya Yogi, some are practicing Buddhi Yogi. So now Shri Krishna elaborately want to establish a balance for Sankhya Yogi also, that what should they do, and also Buddhi Yogi, that not it is the pure devotion is not necessary. You by your intellect you also see whatever you are doing, how you are doing, what is your perception while doing. सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति ही पूरी नहीं है, अपने में पूर्ण नहीं है, तुम्हें ये भी देखना होगा कि तुम जो कर्म कर रहे हो उसका तुम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कहीं तुम हर्ष की ओर तो नहीं भाग रहे हो, विषाद की ओर तो नहीं भाग रहे हो, क्या ये सम्यक रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित तो है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें प्रगति की ओर दोहरी गति प्राप्ति होगी। भक्ति योग तो श्रेष्ठ है, लेकिन हम अपनी तरफ से जब इसमें कुछ आहूत करते हैं तो हमें क्या करना है, कर्म फल को आहूत करना है। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है तो हमें अधिक प्राप्त होता है, तो इसी तरीके से हमको कर्म भी करना है, लेकिन उसके फलों को प्रभु चरणों में आहूत करने से हमारे भक्ति योग में 4 चांद लग जाते हैं। सो नाउ हियर दैट इज इलेबरेटेड इन द लेटर ऑन वर्स। आगे के श्लोकों में भगवान ने व्याख्या बहुत सुंदर की है कि कर्म हमें कैसे करना है। तो दोनों लोगों के लिए व्याख्या की गई है, सांख्य योगी के लिए भी की गई है और बुद्धि योगी के लिए भी, कि ये दोनों में दोनों प्रकार के योग रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कर्म छोड़ देना चाहिए, सो इट इज़ द प्रपोर्शन विच डिफर्स। कुछ विवेक पर ज़्यादा महत्व देते हैं, कुछ भक्ति पर ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हमें कर्म कैसे करना है, महत्वपूर्ण तो कर्म है, कर्म तो हमें करना ही है। अवर बॉडी, हमारी बॉडी में तीनों प्रकार के गुण हैं जो हमें बिना कर्म के रहने ही नहीं देते। हम कर्म का पूरी तरह से त्याग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे आंतरिक कर्म तो निरंतर चला करते हैं, मन भी चला करता है। इस तरीके से बुद्धि, मन और शरीर ये सदैव क्रियाशील हैं, हम कर्म का त्याग नहीं कर सकते। इनका उपयोग करते हुए, हम सम्यक उपयोग करते हुए कैसे प्रगति को प्राप्त करें, इसके बारे में भगवान ने अध्याय 3 में बड़ी सुंदर व्याख्या की। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ सेकंड वर्स इज, you bewilder my understanding as it were by a seemingly conflicting statement. Tell me for certain one of these by which I may attain the highest God. Arjun misunderstood Sri Krishna's intention, thinking that if knowledge is superior to action, that let us become Sankhya Yogi, let us go, that soul is immortal and this world is ephemeral. Then why should we perform this ghastly duty of waging the war? Hence he said, by making contradictory statement, you are bewildering my entry. And on other side, Lord Krishna is saying, do work but be equanimous, कि कर्म करो लेकिन समान रूप से करो और इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में करो, समबुद्धि से करो। तो यहाँ पर अर्जुन इस बात पर भ्रमित हो गया था, जिसकी शंकाओं को भगवान ने आगे के श्लोकों में दूर किया है। वर्स 3.03 श्री भगवान वाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोके अस्मिन्, इन दिस, लोके, that in this world, लोके अस्मिन् द्विविधा, 2 types of nishtha. So there are 2 types of faith existing. Pura prokta maya anag, as I stated in 2nd chapter. So O anag, O nishpap, that is O sinless Arjun, anag. So O sinless Arjun, by me, pura prokta, as said prokta earlier, as prokta means said, as said by me earlier, there are 2 types of faith which are coexisting.
in this world. Loke asmin dvividha nishtha pura prokta maya anag. Jnana yogin sankhinam. So, through the path of knowledge, it is for Sankhya Yogi. By the path of wisdom, they want to discriminate between soul and body. So that is Gyan Yogi. So these are, so they renounce the work. That why we do work when our soul is immortal? Then we have to purify it by renouncing the work, external work. And Karma Yogin Yoginam. And the other one is through the path of action. It is for Buddhi Yogi, it is for Karma Yogi. So by the actions, when we purify ourselves, then it is Buddhi Yoga. But Buddhi Yoga means do the karma, but with samatva. That means with equanimous. Remain equanimous in all the actions. We should be free from the result. While doing works, we should not get attached to its fruits. We should work for our progress. So there are two types of faiths coexisting in this world. Now literal meaning is, the blessed Lord said, O unblemished one, two kinds of steadfastness in the world were spoken by me in the days of in the previous chapter, that is yoga of knowledge for the men of realization, and through the yoga of action for the yogis. So Sri Krishna explained the two paths leading to spiritual perfection. The first is the acquisition of knowledge through the analytical study of nature of soul. So when we analyze by our wisdom that what is soul, what is body, so in this way, the what is Jad, what is Chetan, what we see, that we analyze later on, and by that we attain spiritualism. Sri Krishna refers to this as Sankhya Yoga. That is, Sankhya Yoga means there are two. Sankhya, that is number. It is numeral yoga. Jad, Chetan, Para, Apara, Maya, Prakrit. That is, different things are there. Paramatma or Maya, so Prakriti. So these are the two different things. Here it is said. So it is Sankhya Yoga. People with a philosophical blend of mind are inclined towards the path. They are thinking, जो दर्शन शास्त्र में विश्वास रखते हैं, they are going for this, they analyze it, वे विश्लेषण करते हैं और सांख्य योग की ओर जाते हैं. Second is by the process of working in the spirit of devotion to God. The other one is process of working. वो कर्म का त्याग नहीं करते, लेकिन कर्म को भगवान के लिए करते हैं. That is बुद्धि योग. So, but they by intellect always focusing that these works are not giving any kind of bondage to us. It is purely done for God only, and they remain unattached by its actions. So they, by that they purifying the mind and naturally awakens in the purified mind and get enlightened. और इस प्रकार से वे अंत में उसी सत्य को प्राप्त कर लेते हैं. Amongst people interested in the spiritual path, there are those who are inclined towards contemplation, and then there are those inclined to action. दो तरीके की साधना है, एक चिंतन और दूसरा कर्म, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग. So that is contemplation, चिंतन. By analytical knowledge, when we go practice spiritualism, then it is कंटेम्पलेशन. ये सांख्य योग है. जब हम कर्म के द्वारा भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, कर्म को समर्पित करके, ये तो बहुत बड़ा समर्पण है, यज्ञ से बड़ा समर्पण. तो कर्म को आहूत कर देते हैं भगवान के चरणों. कर्म के बिना तो कोई नहीं रह सकता, क्योंकि हम तीनों प्रकार की प्रकृतियों से युक्त हैं, सत, रज और तामस. सो कर्म के बिना ये शरीर नहीं रह सकता, इनसे मिलकर ही ये शरीर बना. तो उस प्रकार से हम बुद्धि योग कहते हैं. नाउ our sister Geeta Jaiswal will recite a bhajan for us. Ram Ram, Shri Ram. Sukh varan
श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम। राम राम भैया, राम राम सभी को राम राम। राम राम भैया, राम राम। कुसुम मौसी राम राम। सभी को राम राम। विजया दीदी राम राम। बस और कुमार बहुत अच्छा लगा। दूसरे अध्याय का विवेचन करते हुए तीसरा अध्याय प्रारंभ किया, और सांख्य योग हमेशा याद रहेगा। आपने बता दिया संख्या कि हमेशा संख्या, सब सही बात है, उसमें दोनों का बता दिया, चलो और चेतन संख्या का पूरा बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद मार्गदर्शन देते रहो, बहुत सूत्र बता देते हो, बहुत अच्छा लगता है जो कि फिर मन में चलते रहे। उत्पत्ति हुई है, इसका जो उद्भव है ये सांख्य योग का यही है कि जहाँ पर द्वैतवाद है वो सांख्य योग है। और तीसरे अध्याय का भी प्रारंभ किया, उसमें बड़ी अच्छी बात बता दी कि भक्ति के साथ साथ हम अपने भावों का भी ध्यान दें कि भाई हमारे भाव क्या चल रहे हैं। भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, उसमें भी अपना ध्यान देना बहुत जरूरी है। बुद्धि हमको एक उपकरण के तौर पर दी गई है, सब बड़े अर्थपूर्ण हैं, तो इस तरीके से हमें इसका उपयोग करना ही है। लोगों का स्रोत जो है ना दीदी, उसके माध्यम से चारों तरफ वर्षा हो रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी के द्वारा ये वर्षा, जो स्रोत जो है, स्रोत यदि अच्छा होता है तो चारों तरफ वर्षा होती रहती है ना, बढ़िया। दीदी को बार बार चरण राम राम दीदी, राम राम, प्रणाम दीदी, राम राम दीदी, राम राम, राम राम।